is Saman Salman. I'm the Senior Product Manager at JazzCash, and the topic that I'd be speaking about today is from access to agency. We'd be rethinking about financial inclusion for women in digital Pakistan. I'll start by a brief introduction of who I am and why does it matter. So I'm looking after the consumer product domain at JazzCash. And JazzCash, as we all know, is the leading mobile wallet company at Pakistan with over 70 million registered users. For the past year, I've been working on an account, which is JazzCash Women account. And we have built this using feedback from real customer voices, real customer problems, and real pain points faced by them. I'd be talking more about that account on the course of this presentation. But I'd start by telling you a progress made by Pakistan. That's not all bad, that we've made progress, that there is good news. So we've moved from 4% to 52% in terms of financial inclusion for women in Pakistan from 2018 to 2025. So in the span of 7 years, we've moved from 4 to 52. That's a remarkable achievement, a remarkable shift, and it could not have been possible without the countless efforts of our government and private institutions, the banks and the fintechs. Over 17.6 million new accounts were opened by females in Pakistan since 2021. And these are real women, real voices, real people. But still, there exists a 30% gender gap in terms of ownership, account ownership between women and men. And when we talk about account usage and account ownership in true sense, like the independence, the power, this gap is even wider. And as the slide says, opening an account is not the same as owning your financial life. Next, I'll talk about the social experiment that actually shaped us into making a JazzCash Women account. I'll show you a small snippet of it. It's a social experiment that was conducted a few years ago. It includes people from different races, ages, ethnicities, and financial backgrounds. Like there are entrepreneurs, there's people from professional and corporate world, so it spans a lot of different categories. And you can take a look at how they respond to simple, basic questions and financial questions. Hello everyone. Thank you so much for coming to help us conduct this experiment today. We were of different ages, we were made to stand in a line. Now I'm gonna ask you a bunch of questions. If your answer is a yes, step forward. If it's a no, please step back. Here goes. Ready? Did you learn how to ride a bicycle before the age of 10? Did you learn music in school? Did you take any lessons in sports? And no, video games are not a sport, even if it has the word game in it. Did you learn how to iron your clothes while still in school? Take a step forward. If not, take a step back. If you can make tea or breakfast, not just for yourselves, please step forward. If not, take a step back. In the beginning, I think the questions were more general. People were still going forward and backward. Questions like, it was funny to see the cooking question. There were a lot of men who went ahead and there were women who were going behind. Do you usually make all the household bill payments yourself? Do you know the circle rate in your area? Do you know the price of gold today? Do you know the exact breakup of your salary? As the questions unfolded, the stark difference came out visibly. Do you know the details of the financial documents you're asked to sign? Have you bought a vehicle in your own name without consulting anybody? Have you bought insurance policies unassisted? Do you watch or follow the budget? Like you think you're doing okay, but then you're like, okay, these are kind of important things that I don't look at. Do you manage your own finances and earnings unassisted? Do you know how to invest in mutual funds?
Do you know the difference between a mutual fund and an SIP? Do you make the investments for your family members or your spouse? Do you file your own income tax return? Now, this is a small snippet of the whole experiment. You can watch the full version on YouTube. But what it explains is that, जो कि इसमें clearly visible भी है, that there is a clear gender gap between men and women when it comes to financial literacy and financial usage. जब तक सवाल बहुत आसान थे अबाउट कुकिंग, अबाउट ड्राइविंग, अबाउट बेसिक थिंग्स, तो हम देख रहे थे कि इक्वल रेशो था, लड़के आगे जा रहे थे, लड़कियां पीछे जा रही थी इक्वल रेशो से. बट एज सून एज द क्वेश्चंस चेंज्ड एंड द क्वेश्चंस वर अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल यूजेज, वी सॉ अ क्लियर पैटर्न दैट ओनली men were moving ahead and the females were taking a step backward. And that is the gap that we're talking about today, that access only isn't enough. It's the confidence, the power, and the independence to use your account that matters, and which is actually the agency that we're talking about today, that we have to build in order for women to feel empowered and financially included in true sense. So I'll begin by telling you about how we started designing this product, this JazzCash Women account that we're talking about. We did not design it on table. Before designing any feature or anything, what we did was we moved to the market. We discussed with the actual women that we're making the product about. We conducted research, we conducted surveys, focus groups, trying to understand what their pain points was, what were the actual reasons that they haven't been financially included and part of the financial ecosystem as of now. And I'll show you a snippet of the survey results. So one basic question that we asked them was, what holds you back from opening a mobile account? And the results were really surprising for us. First one being the most. As you can see, 68% females never thought about opening a mobile account. It doesn't say कि उनको किसी ने रोका. It doesn't say कि उन्होंने खोलने की कोशिश की but account खुला नहीं. It says कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं. उनके दिमाग में कभी ये ख्याल आया ही नहीं कि उन्होंने account खोलना है. जिससे हमारा फर्स्ट स्टेप ये था कि हमें बिफोर एक्चुअली डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट वी हैव टू वर्क ऑन द अवेयरनेस ऑफ व्हाई द नीड एग्जिस्ट्स, व्हाई डू दे हैव टू ओपन अ मोबाइल अकाउंट, व्हाई डू हैव टू बी फाइनेंशियली इंक्लूडेड. The second, as you can see, 67% said they lack money to use an account. इसका क्या मतलब है कि उनके पास, उनको लगता है इतने पैसे ही नहीं है जो अकाउंट खोलने के लिए ज़रूरी होते हैं. उनको लगता है कि लाखों रुपए शायद लगते हैं और वो जब तक ना हो या एक स्टेबल फाइनेंशियल इनकम ना हो, उनकी सैलरी ना हो, तो वो मोबाइल अकाउंट खोल ही नहीं सकते. जो अगेन उनकी एक परसेप्शन है, इट्स नॉट अ रियलिटी, बट दीज आर ऑल बेस्ड ऑन देयर परसेप्शंस विदाउट एनी रिसर्च जो उन्होंने हमें फीडबैक दी इन द सर्वे. Thirdly, 37% said that they assume कि अकाउंट ओपनिंग की जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है और अगेन उनके पास पैसे ही नहीं है तो वो फीस कैसे देंगे और अकाउंट कैसे खोलेंगे. अगेन उनका परसेप्शन है, नथिंग आउट ऑफ रिसर्च. उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया कि वो रिसर्च करें, ऑल बेस्ड ऑन परसेप्शन एंड दे ओन लाइक इन देयर हेड दे हैव दिस परसीव्ड प्री कंसेप्शन कि फीस बहुत हाई है. 33% said that they don't have a bank nearby, which is a clear problem for the rural areas. सारे हमारे छोटे शहरों में यही इशू है कि उनके पास कोई क्लोज बाय बैंक ही नहीं है, तो naturally so ये एक उनके लिए प्रॉब्लम है और एक बैरियर है for opening an account. 29% females are apprehensive about documentation. उनको लगता है अकाउंट खोलने में डॉक्यूमेंटेशन और लीगैलिटी इतनी ज़्यादा है कि उनकी फाइनेंशियल नॉलेज उतनी है ही नहीं कि वो अकाउंट खोल सकें. Lastly, which is the most important, I believe, 23% said that they were not allowed by their male family members to open a mobile account. Now, this is 1 in every 4 women that we interviewed, that we surveyed, who gave us this response. This shows कि हमें सिर्फ औरतों को अवेयर नहीं कराना, हमने मर्दों को भी अवेयर कराना है. And what all of the survey shows is that it's not the product problem, it's actually a perception problem. And for the last one, like I said, it's more of a power problem that we have to address for women to be
empowered and included in the financial system. Next, I'll walk you through how we addressed each of these barriers and actually designed features of the product based on them. इन सब features को हमने इसी तरह डिज़ाइन किया जो किसी ना किसी औरत की कोई प्रॉब्लम थी, किसी ना किसी औरत ने को लगा कि ये एक चीज़ है जो उसको लगता है कि एग्जिस्ट नहीं करती, और हमने इस तरह स्टेप बाय स्टेप उनकी फीडबैक को देखते हुए उन सब बैरियर्स को एड्रेस करते हुए इस प्रोडक्ट के फीचर्स डिज़ाइन करना शुरू किया. सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बोला कि फ़ीस बहुत हाई होगी, तो हमारा अकाउंट जो है उसकी कोई अकाउंट ओपनिंग की फ़ी नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ्री, कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट. सेकेंडली उन्होंने हमें कहा कि बैंक बहुत दूर है, तो हमारा अकाउंट डिजिटल है, उसके लिए उनको बैंक की ज़रूरत ही नहीं है, वो किसी भी वक्त किसी भी जगह कहीं से भी जैज़ कैश वुमेन अकाउंट खोल सकते हैं, उसके लिए कोई बैंक की ज़रूरत नहीं है उन्हें. थर्डली उन्होंने हमें कहा कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल है, वो एप्रीहेंसिव थे अबाउट द लीगैलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो हमारा अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ एक वैलिड CNIC की ज़रूरत है उन्हें को, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंटेशन उन्हें चाहिए ही नहीं, तो ये बहुत आसान है. फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो उन्होंने बोला था कि उनके पास इनफ मनी ही नहीं है कि वो अकाउंट खोलें. इसको एड्रेस करने के लिए हमारे अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है जो उन्होंने मेंटेन करना हो इन ऑर्डर फॉर दिस अकाउंट टू फंक्शन. और इसके अलावा हमने और भी प्रोडक्ट फीचर्स इंक्लूड किए जैसे कि बाय नाउ पे लेटर, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताती हूँ. उनको एक और फियर था कि उनके साथ फ्रॉड हो जाएगा, उनके पैसे चोरी हो जाएंगे, जैसे कि वो डिजिटल अकाउंट खोलेंगे कोई ना कोई स्कैम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. इसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने फ्री मनी इंश्योरेंस बिल्ड की अपने प्रोडक्ट में और फ्री एक्सीडेंटल डेथ कवरेज, इसके बारे में भी मैं थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगी. लास्टली उन्होंने बोला हम कॉन्फिडेंट ही नहीं है अबाउट यूजिंग दिस प्रोडक्ट. अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि अगर हम उन्हें सिखाएंगे नहीं, उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, उन्हें बताएंगे नहीं कि कैसे यूज़ करना. तो हमने क्या किया, हमने इस अकाउंट में मल्टीपल एजुकेशनल रिसोर्सेज इंक्लूड किए बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी के. व्हाट इज सेविंग्स, व्हाट इज इंश्योरेंस, हाउ दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अकाउंट. और उससे हमें लगता है कि जब आप किसी को सिखाते हैं तो उसका नेचुरली यूजेज का कॉन्फिडेंस आ जाता है. और फिर इस सर्वे और इस सब के बाद हमें एहसास हुआ कि वी एक्चुअली हैव टू वर्क ऑन 3 पिलर्स विच आर बेसिक. फर्स्ट ऑफ विच इज ट्रस्ट, second is control, and third is relevance in order to achieve the agency that we're talking about today. So like we said, the main problem is trust. Like the slide says, for many women the fear isn't using money, it's losing it. तो इसके लिए हमने क्या किया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने सबसे पहले फ्री मनी इंश्योरेंस बिल्ड की. अब अगर कोई पहली दफ़ा अकाउंट यूज़ कर रहा है तो उसको ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देनी बहुत ज़रूरी थी कि अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई स्कैम हो भी जाता है या कोई इशू हो भी जाता है तो कंपनी की तरफ से वो प्रोटेक्टेड हैं, वो अपनी जो अमाउंट है वो रीइंबर्स करा सकते हैं इन दैट केस, ताकि उनका यूजेज का एक पैटर्न बने. तो सही वो ये सोचते ही ना रहें कि अगर स्कैम हो गया, अगर कोई मसला हो गया, तो वी हैड टू मूव अ स्टेप अहेड. सेकेंडली, जैसे कि हमें पता है कि औरतों के लिए उनकी अपने से ज़्यादा उनकी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, तो हमने इसके अंदर क्या बिल्ड किया, एक्सीडेंटल डेथ कवरेज. खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ हो भी जाता है तो ये अकाउंट उनकी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी एक्ट करेगा. दिस अगेन इज़ अ फ्री फीचर विच इज़ बिल्ट इन फॉर दिस प्रोडक्ट, दे डोंट हैव टू एक्टिवेट इट. Thirdly, like we talked about before, this account has full transparency. There's no hidden charges. कोई भी अगर charges या fees कोई थोड़े बहुत होते भी हैं किसी product या service के, तो वो हाँ up front customer को बताते हैं ताकि उसको पहले ट्रांजैक्शन करने से पहले पता चल जाए और बाद में कोई सरप्राइज ना हो या शॉक ना हो कि मेरे पैसे कैसे कट गए, मैंने तो ट्रांजैक्शन की नहीं. तो दिस इज हाउ वी हैव एड्रेस्ड द ट्रस्ट इशू. एंड द सेकेंड, दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पिलर विच इज कंट्रोल. तो अब कस्टमर को ट्रस्ट तो आ गया, लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे या फाइनेंशियल अपने जो पैसे हैं उस पर कंट्रोल कैसे लाए, उसको ओन कैसे करे, उसको कैसे यूज़ करे. तो उसके लिए वी ऑल्सो बिल्ड इन फ्यू फीचर्स.
जिसमें से फर्स्ट इज द मनी मैनेजमेंट टूल विच इज़ अ बजटिंग टूल इन अ वे कि इससे वो अपनी जो सारी इनकम है, अपनी एक्सपेंसेस उनको ट्रैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि वो शॉपिंग है, ग्रोसरी है। और थर्डली क्या कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक गोल्स भी सेट कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें वो इस महीने में इतनी सेविंग करना चाहते हैं और इतनी अमाउंट से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। एंड ट्रस्ट मी, फॉर समवन जिसने पहले कभी बजटिंग की ना हो या पहले इस तरह डिजिटली अपना पूरा एक्सपेंस का मैप ना देखा हो, दिस प्रोडक्ट एक्ट्स एज अ मिरर एंड वंस यू नो वेयर योर मनी इज गोइंग, यू आर बेटर इक्विप्ड टू एक्चुअली मेक डिसीजंस of where to cut your expenses and where more to, you can say, save, and how to transact better. Secondly, we introduced higher saving rates. Now, these saving rates are higher than what the normal JazzCash account offers. And the reason for this was कि वो पैसे अपने पास रख तो रही हैं, एक आम औरत भी अपने पास जब वो पैसे सेव करती है तो वो कहीं ना कहीं घर में रख लेती है, लेकिन सेविंग का एक ट्रेंड या कल्चर नहीं एग्जिस्ट करता औरतों में। तो हमें उसको ये सिखाना है कि आपने अपनी जो सारी सेविंग है उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है। लाइक विद टाइम आपकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, आपके पैसों की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो हमने उसको ये सिखाना है कि आपने सिर्फ सेव नहीं करना, उसको ग्रो भी करना है, इन्वेस्ट भी करना है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप कि हमने उसको हायर सेविंग रेट दिए ताकि वो आए और उसकी एक सेविंग की हैबिट बने। थर्डली, लाइक वी टॉक्ड अबाउट, हमने एजुकेशन कंटेंट इंटीग्रेट किया। हमने स्मॉल इजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस और छोटी छोटी एनिमेशंस डाली रिगार्डिंग व्हाट इज़ सेविंग्स, व्हाट इज़ इस्लामिक सेविंग्स एंड ऑल, ताकि उसको पता चले, उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ सके और फिर जब वो समझेगी तभी तो वो अपनी फाइनेंसिस का कंट्रोल ले सकेगी। This brings me to the third pillar, which is relevance. अब अकाउंट खुल तो गया और कंट्रोल भी आ गया, लेकिन मैंने अगर अकाउंट यूज़ ही नहीं किया तो वो फिर एक इनएक्टिव अकाउंट है, वो एक स्टेटिस्टिक है, वो औरत क्या एक्चुअली इंक्लूडेड है, वो इंक्लूडेड नहीं है। वो तब तक इंक्लूडेड नहीं है जब तक वो एम्पावर्ड इस तरह से ना हो कि वो उसको एक हैबिचुअल यूज़र ना बने उस अकाउंट की। तो उसके लिए हमने मल्टीपल फीचर्स इंक्लूड किए ताकि वो अकाउंट उसके लिए रेलेवेंट हो और उसकी डेली लाइफ का पार्ट बन सके। फर्स्ट ऑफ विच वॉज एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स। हमने इस अकाउंट के साथ एक डेबिट कार्ड को लिंक किया विच इज़ वुमेन डेबिट कार्ड, और उसके ऊपर हम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं ऑन top brands like all female related, you name it, Sana, Safina's, Khadi, Lam, all these brands, and this is also includes the major eateries. सब पे हमने डिस्काउंट देना शुरू किए ताकि उसकी हैबिट बन सके, ताकि वो कैश के ऊपर डिजिटल पेमेंट्स को प्रेफर कर सके। सेकेंडली, हमने एक बाय नाउ पे लेटर का फीचर इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि हमने अभी पहले भी देखा कि उनके पास कभी कभी ऐसे होता है कि पैसे नहीं होते। तो इस फीचर से वो क्या कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें उनके पास आज पैसे नहीं हैं और उन्होंने कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो वो क्या कर सकते हैं, आज ख़रीद सकते हैं और फिर जब भी उनके पास पैसे आएंगे तो वो ईजी इंस्टॉलमेंट्स में उसको वापस कर सकते हैं। तो अगेन वी ट्राई टू बिल्ड एजेंसी फॉर हर आफ्टर गिविंग हर एक्सेस। थर्डली, अगर उसके पास कार्ड नहीं है, जो कि हमने उसको किया, लेट्स से कि वो कार्ड नहीं भी खरीदती, वो कार्ड के लिए ऑप्ट नहीं भी करती, तो भी उसको सारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे हम कैशबैक और रिवॉर्ड्स ऑफर करें टाइम एंड अगेन टू बिल्ड अ हैबिट फॉर हर कि वो कैश से डिजिटल इकोनॉमी में आए, वो डिजिटल पेमेंट्स को प्रेफर करे। जब उसको उन्हीं ट्रांजैक्शंस के लिए यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो क्लियरली उसका एक हैबिट और यूजेज पैटर्न बनेगा। So this is how we tried to build this product. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी। उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के दिल में ये ख्याल मतलब दिमाग में आया होगा कि ये वीडियो तो अगर हमने पढ़े लिखे लोगों के साथ कंडक्ट की होती, अगर ये वीडियो हम लोगों ने ऐसे लोगों के साथ कंडक्ट की होती जिनको फाइनेंशियल नॉलेज होती, तो मे बी रिजल्ट होता, फ़र्क होता। अगर हमने ये वीडियो शायद एम्प्लॉयज़ के साथ की होती जो बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो मे बी रिज़ल्ट फ़र्क होता। हमें भी यही लगा था कि मे बी रिज़ल्ट फ़र्क होगा, और फिर इसीलिए हम लोगों ने अभी इस वुमेंस डे अपने ऑफिस के अंदर यही एक सोशल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। हमने देखा कि क्या एक्चुअली रिज़ल्ट फ़र्क होता है या नहीं, तो उसकी भी मैं एक स्मॉल स्निपेट है जो आपको दिखाती हूँ।
everyone, welcome. Today we are conducting an experiment. We will be asking you guys a couple of questions. बहुत सिंपल सवालात हैं. अगर आपका आंसर उसके लिए हाँ है तो आपने एक कदम आगे लेना है, और अगर उसका आंसर आपके लिए ना है तो आपने एक कदम पीछे लेना है. सबसे पहले मुझे बताएं, do you love your job? किसको पेट्स बहुत पसंद है? एक्सट्रोवर्टेड कौन है जिसको दोस्त बनाना बहुत पसंद है? ड्राइविंग में अपने आप को प्रो कौन समझता है? आप में से कौन अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करता है? आज की इन्वेस्टमेंट रेट किसको पता है? मंथली बजटिंग और एक्सपेंस ट्रैकिंग आपकी जिम्मेदारी है. रेगुलर ट्रेडिंग कौन करता है? फाइनेंशियल रिस्क लेते हुए घबराते नहीं है. किसी को पता है एसेट इंश्योरेंस क्या होती है? म्यूचुअल फंड्स में किसने इन्वेस्ट किया हुआ है? कभी रिटेलर से कैश चेंज या कैश आउट कराया है? कभी डिजिटल लोन लिया है? I would want you guys to stay and look around and see where everyone is standing. सो इस वीडियो से हमने क्या देखा कि पैटर्न वही है, पैटर्न बिल्कुल सेम है. अब इसमें तो सारे लोग वही थे जो पढ़े लिखे हैं, सारे लोग जैज़ कैश में काम करते हैं, मेजॉरिटी लोग प्रोडक्ट ओनर्स या प्रोडक्ट डेवलपर्स हैं जिनको आम कस्टमर से प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब वो अपने घर में जाते हैं तो जब अपने फाइनेंसेस का कोई डिसीजन लेना होता है तो उसमें वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन नहीं ले पाती. दे आर रिलाइंग ऑन देयर मेल काउंटर पार्ट्स. दे आर नॉट एज मच एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट अबाउट टेकिंग देयर ओन फाइनेंशियल डिसीजंस. सो वी कैन सी कि पॉवर्टी का प्रॉब्लम नहीं है. जो प्रॉब्लम है वो सारी औरतों का है, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं कुछ. इट्स मोर अबाउट द सोशल कंडीशनिंग, द इन्वायरमेंट एंड द कल्चर दैट वी आर इन. So this brings me up to my next slide. That what we have to do is, as a group of people, as a country, as a nation, what we have to do is we have to, in a way, change the culture. It's not easy, but we have to take our step. We have to try. We have to change the norms. We have to change the thinking of both men and females. Like, मर्दों को हमें ये बताना है कि अगर औरत अकाउंट यूज़ करी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है. और सिमिलरली औरतों को ख़वातीन को हमने ये बताना है कि वो हर चीज़ खुद से कर सकती है. उसको किसी आदमी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने इन्वेस्टिंग के डिसीजन या सेविंग के डिसीजन कैसे ले सके. सो कल्चर चेंज करने के लिए अगर मैं जैज़ कैश की बात करूँ तो द फर्स्ट थिंग इज़ रिप्रेजेंटेशन. जो हमारी सारी कैंपेन्स होती हैं, हमारे एड्स होते हैं, सब फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें उसके अंदर जो औरतों की रिप्रेजेंटेशन है उसको चेंज करना है. हमें ख़वातीन को ऐसे दिखाना है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ना कि ऐसे दिखाना है कि हम दिखा किसी मेल को रहे हैं और बोल रहे हैं कि सेंड मनी टू योर वाइफ, सेंड मनी टू योर मदर. बल्कि हमें फीमेल को एज द मेन स्टार ऑफ द एड दिखाना है कि जिससे एक चेंज आएगा नेचुरली. जब आम औरत एड में देखेगी कि वो कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. हमें इसको एक नॉर्म बनाना है. सेकेंड चीज़ इज़ कम्युनिटी. what we're trying to do is that we're building communities in which we're like the users of the account are sharing their success stories with other female. उससे क्या होता है कि जब एक औरत को ये लगता है ना कि जब वो दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनती है तो उसको ये लगता है कि वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, तो उसके लिए वो चीज़ पॉसिबल बन जाती है. और जो उसको पहले इम्पॉसिबल लग रहा था कि ये मैं कैसे करूँगी, वो उसको विद टाइम पॉसिबल लगना शुरू हो जाता है. थर्डली ये है कि हम अपनी जैज़ कैश पे ही जिस तरह सिमिलर जो हम अपने वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स करें, इवन सोशल मीडिया पे, सिमिलर टू दैट उधर हर जगह हम रियल स्टोरीज शोकेस करें ताकि वो ज़्यादा रेलेवेंट हो एक आम खातून के लिए.
उसको ये ना लगे कि ये तो कोई एक्ट्रेस दिखा रहे हैं या ये तो कोई बहुत पढ़ी लिखी है जिसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी है, वो रिलेट कर पाए, इसलिए हम रियल स्टोरीज दिखाएंगे. और इसके साथ ही साथ आई विल ब्रिंग यू टू 2 रियल स्टोरीज बिफोर वी मूव टू द क्विज. फर्स्ट स्टोरी इज ऑफ अ 60-year-old बहबूद एम्प्लॉय. ये 60 साल की औरत बहबूद के साथ जो है बहुत सालों से काम करी थी ऑन अ डेली वेज. उसको रोज़ बहबूद की तरफ से सैलरी मिलती थी, वो घर जाती थी और वो अपनी सैलरी जो है नेचुरली या हस्बैंड या बेटा उसका उससे ले लेता था और उसके पास उन पैसों पे कोई कंट्रोल नहीं था. हमने उसका जैज़ कैश अकाउंट जब खोला और उसको उसका डेबिट कार्ड दिया तो वो रोना शुरू हो गई. उसको यकीन नहीं आ रहा था कि जब उसने अपने कार्ड पे अपना नाम देखा तो उसको यकीन ही नहीं आया कि ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरी सैलरी आया करेगी अब से और मैं इससे एटीएम से जाके पैसे निकलवा सकती हूँ. तो हमारे लिए जो चीज़ बहुत कॉमन है और जो हमें बहुत नॉर्मल लगती है वो उसके लिए कॉमन नहीं थी. वो एक्साइटेड हो रही थी उससे, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये एक रियलिटी है, ये हो भी सकता है. तो इस एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि उसको एक्सेस मिला और उसके बाद उसकी इन्वायरमेंट चेंज हुई और उसके लिए एजेंसी भी बनी. सेकंड एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, जैसे कि हम लोग हैं बहुत अफ्लुएंट लड़की, वो पढ़ी लिखी भी है, वो जॉब भी करी है, उसको सैलरी भी मिल रही है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है इन ऑल ट्रू सेंस. बट जब कोई भी इन्वेस्टिंग की डिसीजन आता है या जब भी कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं या नहीं, मैं अपने पैसों से गोल्ड लूं या मैं प्लॉट ले लूं, इस टाइप के डिसीजंस के लिए वो रिलायंट है ऑन द मेल काउंटर पार्ट. तो क्या वो एक्चुअल में एम्पावर्ड है? वो एम्पावर्ड नहीं है. इस सिनेरियो में क्या है, उसके पास एक्सेस तो है बट उसके पास एजेंसी नहीं है. और इसी से जो हमारा कोर point here of this whole discussion that we're having is that we have to close this gap between access and agency. We have to actually empower women to actually feel independent about taking their own financial decisions, about actually you can say be empowered about how and where their money is going, and it's all in their control in true sense, and they're not actually dependent on anyone but themselves for their financial decisions. With this, I'd like to move with the quiz. Let's see how much all of you or any of you has absorbed, and there will be giveaways for the right answers. So the first question, you can all raise your hands and I'll ask someone, and if they get the right answer, they can come up and they'll get the award for it. Okay, so what percentage of Pakistani women own a mobile phone? Is it A, 24%, B, 44%, C, 65%, or D, 15%? Does anyone know? 44, no, that's wrong. That's also wrong. 24% is the right answer. Would you or you like to receive the? आजा, हाँ जी, आजा, आजा. नेक्स्ट अब हम सेंटर ऑफ स्टेज करते हैं. अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन इज, ये तो बहुत इजी है, अगर किसी ने शुरू से प्रेजेंटेशन सुनी होगी तो उसको इसका आंसर आना चाहिए. वुमेन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन रोज फ्रॉम 4% to what percent between 2018 and 2025? Is it A, 32%, B, 45%, C, 52%, or D, 56%? Ji? Ji? Wrong answer. A is also wrong. 45 is wrong. At the back, C, 52% is the right answer. You can come up. वो है एक और. अच्छा ठीक है, अच्छा बस ठीक है.
Let's move to the third question. So what percent of loans to Pakistani women are at microfinance level? मतलब छोटे 10-20 हज़ार वाले लेवल के लोग, आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज के हैं? 65, 79, 86 और 93%? That's a wrong answer. 93% is the right answer, which shows कि almost closer to 100% जो उनको loans मिलते हैं वो इतने undervalued होते हैं कि वो शायद उससे अपना business तो कभी भी नहीं खोल सकती. हाँ वो अब लेकिन इस हॉल में अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो ज़्यादा मर्दों की शिरकत हुई हुई है, तो शायद औरतों को एक्सेस ही इतना नहीं मिल रहा, ये भी हम देखें. अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन इज अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन. सो इंटरनेट एक्सेस इज द मेन ड्राइवर ऑफ वुमेन इंक्लूजन. इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? दिस इज द इजीएस्ट. ट्रू? ट्रू इज द रॉन्ग आंसर. अच्छा, now this was the easiest question. I gave you a chance. अभी हमने पूरा डिस्कस किया है कि इंटरनेट एक्सेस तो इतना इशू है ही नहीं, हमें ज़्यादा इशू जो है वो कंट्रोल का है, लाइक एम्पावरमेंट का है. Now this is the last question. Let's see who answers it. What is the first step towards financial independence? Is it earning? Is it saving? Is it controlling? Or is it investing? Sure, you can. What's the answer? Saving. Saving is the wrong answer. जी? बताएं? हाँ जी? Investing is the wrong answer. Sorry. Controlling is the right answer. True empowerment comes from when you actually control what you earn, you make the financial decisions yourself. So the right answer is controlling. Come in. Now with that, I'll come to my closing remarks. The question that we've always been asking for centuries is, how do we give women access to the financial system? Now with today's discussion, I want you all to ask a different question. How do we build a financial system that women can actually own? This is the real shift from access to agency that we're talking about. This is the gap that we have to bridge. This is the work that I'm putting on all of you, that you have to work as independent entities and also as part of the organizations that you're part on. Thank you so much. If any of you has any questions or anything, I'll be happy to address. And if you want to know more about the account, you can come up to our stall and I'll be happy to guide you how to open an account and what other offers and benefits are there as part of this account. Thank you. भाई सबसे पहले समर के लिए बहुत सारी तालियां. I think the most amazing presentation and this session of the day, very engaging and very phenomenal. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much. Please stay on the stage. I would like to call Mr. Ali Shah, CEO of the Clique Builders, to give this token of appreciation to Ms. Saman Salman. Am I pronouncing it right? Yeah, okay. Money matters, everybody come join. Money matters, everybody get in line. Money matters, everybody come join. Guys, my people to shine. Freedom shows you sign. Don't you deserve to join a feast where Finn Kings dine? Money matters, everybody get in line.
Money matters. Money matters. Money matters. Money matters. Everybody.